Good morning, students. Uh, for this lecture, we are taking Money Laundering Act. What is Money Laundering Act? Money laundering refers to converting illegal earned money into legitimate money. The government does not get any tax on the money because there is no accounting of the black money. So, money laundering is a way to hide the illegally acquired money. Let us have a look on this definition. What is money laundering? First, you tell me what is the meaning of laundering. Laundering means getting white. We change our clothes for laundering to make it brighter. बराबर है. Laundering is one type of making your black money a white. ठीक है. तो money laundering refers to converting illegally earned money. Black money means when you earn the money illegally through illegal ways, then it is known as black money. And when you try to legitimate that money, then it is called as laundering the money. Legitimate money means which is legally known, that is legitimate money. The government does not get any tax on the money. How will government get the tax? Because you have not shown the sources of income. What you have shown that you had made some expenditure to convert your black money into white money. That's why the government does not get any tax on illegally earned money. Illegally earned money means you are hiding the sources of getting the money, because there is no accounting of the black money. बराबर है ना. Black money is not accounted, and as it is not accounted, the government does not get any tax on this illegal money. So money laundering is a way to hide the illegally acquired money. That means money laundering is a way. That means this way you can hide the illegally acquired money. Let us take one example to clear this point. All of you know that the agricultural income is totally exempted from tax. If I want to illegally, that means to convert my illegal money into white money, then what I do? The illegal sources of my earning, I show it under the head income from that means agricultural income. ठीक है. समझ लीजिए कि मैंने कुछ करप्शन किया हुआ है और मैंने लोगों से पैसे लिए हुए हैं. पैसे लिए हुए हैं ये मैं कहीं पे शो नहीं कर रही हूँ, बट यू सी दैट दिस मच मनी इज़ इन माई हैंड्स. बराबर है. आपको दिख रहा है कि इतना सारा पैसा इनके पास है. तो मैं वो पैसे किस चीज़ में दिखाती हूँ? मैं दिखाती हूँ दैट इज़ ऑल थ्रू माई एग्रीकल्चरल इनकम. Agricultural income is totally exempted from tax, and this way I convert my illegal money into a legitimate money. Now see how this illegal money is converted into a white money. The person who manipulates this money is called launderer. That means launderer is who? The person who manipulates this money is known as the launderer. In the method of money laundering, money is invested in such a way that even the investigating agencies can't trace the main source of wealth. क्या होता है ऐसे इसमें कि जो दिस इज़ द मेथड ऑफ लॉन्ड्रिंग, किस तरह से हम लोग ब्लैक मनी को वाइट करते हैं, इस तरह से उसे इन्वेस्ट किया जाता है कि जो इन्वेस्टिंग एजेंसी है वो भी फाइंड आउट नहीं कर पाती है कि फ्रॉम वेयर the sources of wealth, the main source of wealth he cannot identify. समझ में आ रहा है. इसीलिए अभी हमारा जो पूरा का पूरा जो पैन कार्ड के साथ, आधार कार्ड के साथ हर बैंक अकाउंट, हर ट्रांजैक्शन जो रिलेट हो रहा है ना, वो इसीलिए है टू हैव अ चेक ऑन मनी लॉन्ड्रिंग. समझ में है. क्योंकि आपको जैसे भी पैसे मिलने वाले हैं, जिस भी तरीके से अभी आपके हाथ में पैसा आने वाला है, तो it automatically traces the sources of getting that income. So the black money invested into capital markets or other venture returns back to the real money holder as the legitimate money. एक हम लोगों ने कंपनी लॉ में देखा हुआ था, एक एग्जाम्पल आया था हम लोगों को. उसमें ये बताया था कि जैसे हम लोग अगर हमारी इनकम जो है उसे टैक्स नहीं, दैट मीन्स इवेजन ऑफ टैक्स, हम लोग टैक्स नहीं लगाना चाहते हैं,
तो हम लोग उस मनी को अलग अलग तरह से इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास बहुत से ऐसे पैसे हैं, यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के थ्रू मुझे ऐसे पैसे आ रहे हैं जिसके ऊपर मुझे टैक्स लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, कुछ कंपनियाँ फॉर्म करती हूँ और जो मेरा ये इनकम है वो कंपनी को मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ। अब ये ट्रांसफ़र कर दिया है मैंने और मैं उस कंपनी से बताती हूँ कि मुझे हरदम क्या आ रहा है, लॉस। दैट मीन्स आई एम incurring the losses through that established company, और मैंने जो भी पैसे मेरे इन्वेस्ट किए हैं वो पूरी तरह से डूब गए हैं। तो इस तरह से मैं, मेरा ब्लैक मनी जो है वो, दैट मीन्स आई एम इवेडिंग द टैक्स, और मैं इससे क्या कर रही हूँ, और जो रिटर्न में मुझे पैसे मिल रहे हैं, रिटर्न में पैसे मिल रहे हैं, तो मैं क्या शो कर रही हूँ वहाँ पे कि मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो की हुई है, जो मैंने इनको लोन दिया हुआ है, वो लोन मुझे रिटर्न हो रहा है, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। एक्चुअली ये कंपनी क्या है, फेक कंपनियाँ हैं, उस कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मैंने उसे ऐसे ही बनाया हुआ है, ऑन पेपर मैंने उसका एग्जिस्टेंस बताया है, और मैंने ऑन पेपर ही बताया है कि मैंने उनको पैसे दिए हुए हैं, और पैसे जब मेरे पास वापस आ रहे हैं तो मैं बताती हूँ जो लोन दिया है उसका प्रिंसिपल आ रहा है, लेकिन मुझे अभी तक के उसका कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो मनी इन्वेस्टेड इनटू कैपिटल मार्केट्स और अदर वेंचर्स रिटर्न्स बैक टू रियल मनी होल्डर एज द लेजिटिमेट मनी, और ये मेरे हाथ में जो आ रहा है वो लेजिटिमेट मनी करके आ रहा है, और जब मेरा प्रिंसिपल मेरे हाथ में आता है, प्रिंसिपल अमाउंट जो मेरे हाथ में आती है, तो दैट इज़ नॉट ट्रीटेड एज इनकम, सो नो बर्डन ऑफ टैक्स। फिर क्या है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होती है प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में? पहले होती है प्लेसमेंट, सेकंड होती है लेयरिंग, और थर्ड होती है इंटीग्रेशन। क्या क्या है, किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग, दैट मीन्स black money, how it is converted into white money. The first step of converting the black money into white money is placement, the second one is layering, and the third one is integration. Now let us see it one by one. What is placement? The first step in this process is the investment of black money in the market. What you are doing, you are investing the black money in the market. The launderer means who is making the black money, or who is in the process of converting his black money into a white money. The launderer deposits the illegal money through different agents and banks in the form of cash by having a formal or informal agreement. देखिए, हम लोगों ने ये बहुत देखा था जब हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ था। तो डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो मुझे जो मेरे पास मनी है वो क्या करना था, मुझे बैंक में डिपॉजिट करना था, क्योंकि 500 की जो करेंसी थी, 1000 रुपीज़ की जो करेंसी थी, उसको उन्होंने बदल दिया था। अब बदल दिया है तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने बताया था कि वो एक कागज़ का टुकड़ा रह जाएगा, बराबर है। लेकिन मैंने ऐसे, मेरे पास बहुत सारा इलीगल मनी था जो कि मैं बैंक में डिपॉजिट करूँ तो बैंक को पता चल जाएगा कि इतना मेरे पास पैसा है, और फिर मुझे उसका सोर्स बताना पड़ता। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, वो अलग अलग हमारे घर में जो थे, समझ लीजिए मेरे रिश्तेदार ले लीजिए, या हमारे घर में काम करने वाले जो लोग हो गए वो लिखिए, या जो एजेंट्स हो गए उनके पास मैंने क्या किया, ये पैसा दे दिया, और मैंने कहा कि आप अपने नाम से डिपॉजिट कराओ और उसके अगेंस्ट में जो कैश आएगी वो मुझे दे दो। ठीक है, क्योंकि मुझे तो जो करेंसी है, जो अभी प्रेजेंट में चलने वाली करेंसी है वो चाहिए थी, और मेरी जो करेंसी जो आउटडेटेड होने वाली थी उसे मुझे कन्वर्ट करना था। अगर मैं कन्वर्ट नहीं करती तो वो कागज़ के टुकड़े बन जाते और मेरा इतना लॉस होता। तो ये मैंने क्या किया है कि इस तरह से मैंने अलग अलग लोगों को उनके बैंक में मेरा जो ब्लैक मनी था वो इन्वेस्ट करने के लिए दे दिया था। दैट इज़ नोन एज प्लेसमेंट। अ टिपिकल मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने बताया है क्या क्या होता है। पहला प्लेसमेंट होता है। प्लेसमेंट के लिए उन्होंने बताया है कि किस तरह से वो मनी क्या हो रहा है, आप किसी के इसमें दे रहे हो। फिर वो क्या होता है, लेयरिंग हो रही है। फिर इंटीग्रेशन। नेक्स्ट वन, लेयरिंग। व्हाट इज़ लेयरिंग? इन दिस प्रोसेस द लॉन्डरर हाइड्स हिज रियल इनकम बाय मेकिंग फॉल प्ले। क्या कर रहा है वो, गलत तरीके से वो क्या कर रहा है, ही इज़ हाइडिंग हिज रियल इनकम।
The launderer deposits funds to investment instruments such as bonds, stocks, and travelers' check or in their bank accounts abroad. अब्रॉड ऐसे कई अकाउंट्स कंट्रीज़ है जो अपने यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है दिस अकाउंट इज़ ऑफन ओपन इन बैंक्स of those countries which do not reveals the details of their account holders. So in this process the ownership and source of money is disguised. क्या होता है कि ऐसे कई हम लोगों ने एक स्विस बैंक के बारे में सुना हुआ है. हमारे यहाँ के बहुत से लोग जिनके पास ब्लैक मनी था दे ऑफन इन्वेस्ट देयर मनी इन स्विस बैंक्स. बराबर है, क्योंकि वो स्विस बैंक जो थी उनके सोर्सेस या उनके अकाउंट होल्डर्स कौन है उसको डिस्क्लोज नहीं करती थी. यानी किसी ने इन्वेस्टमेंट भी करने की कोशिश की तो भी उनको पता नहीं चलता था और इनका ये ब्लैक मनी जो है वो वहाँ पे सिर्फ इसमें रह जाता था. देन द नेक्स्ट इंटीग्रेशन. व्हाट इज़ इंटीग्रेशन? द फाइनल स्टेज एट विच द लॉन्डरड property is reintroduced into the legitimate economy or returning the money back into the financial world as legal money. और ये जो पैसे वो वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किए थे वो किसी ना किसी तरीके से वो फिर से अपने पास में लाते थे और बताते थे कि ये लेजिटिमेट है. जैसे कि समझ लीजिए कि ये पैसे जो है मैंने बाहर की कंट्री में भेज दिए हैं. अभी मैं ये पेपर पे बताती हूँ कि मेरी एग्रीकल्चरल जो ये थे फूड ग्रेन्स थे वो मैंने उनको बेचे हुए हैं और उसके अगेंस्ट में मुझे ये मनी मिला हुआ है. एज ऑल ऑफ यू नो दैट एग्रीकल्चरल इनकम इज़ टोटली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. अब जितने भी मुझे पैसे बाय सेलिंग माय फूड ग्रेन्स जो मुझे मिल रहे हैं वो पूरे के पूरे कैसे हो गए? वाइट हो गए. यानी वो रिटर्निंग टू मी एज अ लीगल मनी. मैंने क्या किया है? मेरे पैसे दिए हुए हैं, मेरे पैसे उनके अकाउंट में समझ लीजिए डिपॉजिट किए हुए हैं और अब मुझे मेरे वो पैसे वापस चाहिए. एक्चुअली मेरी खेती में कुछ भी नहीं उग रहा है. मेरे यहाँ पे जो खेती है वहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ. फार्म जो है उसमें कुछ नहीं हो रहा है. सिर्फ ये पूरा किसके ऊपर चल रहा है? पेपर पे चल रहा है. पेपर पे मैंने बताया कि मैंने उनको सेल किया है और पेपर पे ही उन्होंने ये दिया है कि हाँ हमने इतने रुपए में इनके फूड ग्रेन्स जो है परचेस किए हैं और वो मुझे उसके पैसे दे रहे. पैसे रियल है जो कि मेरे हैंड में आ रहे हैं, लेकिन कैसे है? जो मेरा ब्लैक मनी जो मैंने उनको दिया हुआ था वो मेरे हाथ में अभी फिर से कैसे आया? दैट इज़ इट्स री इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लेजिटिमेट इकोनॉमी और रिटर्निंग द मनी बैक इनटू द फाइनेंशियल वर्ल्ड एज लीगल मनी. तो लीगल मनी करके वापस आ रहे हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये कुछ उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. देयर कैन बी सेवरल वेज टू डू मनी लॉन्ड्रिंग बट द मोस्ट पॉपुलर इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फेक कंपनीज. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, क्या होता था? कुछ फेक कंपनीज को इनकॉर्पोरेट किया जाता था. दैट मीन्स विच डू नॉट हैव एक्चुअल प्रेजेंस एज अ कंपनी, लेकिन वो पूरे के पूरे पेपर में बन जाते थे, विच इज़ नोन एज द शेल कंपनीज. दिस फेक कंपनीज आर नोन एज शेल कंपनीज. शेल कंपनी एक्ट्स लाइक अ रियल कंपनी. वो बताती थी कि हाँ ये रियल कंपनी है, बट इन रियलिटी दिस कंपनी डज नॉट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड. एक एग्जांपल दे देती हूँ. जैसे कंपनी है तो कंपनी के लिए प्रोडक्शन चल रहा है. प्रोडक्शन चल रहा है तो यू हैव टू परचेज द रॉ मटेरियल. दैट मीन्स यू आर शोइंग दैट दीज आर योर एक्सपेंसेस. You have to pay the salary and wages to the worker and salary to your administrative staff. You do some marketing, and this way you are showing that you are incurring such and such expenses. फिर क्या होता है? कंपनी एक्ट्स लाइक अ रियल कंपनी. वो तो जैसे कंपनी अपने फंक्शन परफॉर्म करती है उसी तरह से ये सिर्फ पेपर पे फंक्शन परफॉर्म कर रही है. एक्चुअली द कंपनी इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंट, बट इन रियलिटी दिस कंपनी डज नॉट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड and no production takes place in such companies, and actually nothing is produced by these companies. Actually these shells companies exist only on paper, not in the real world. But what you are doing, you are showing that you are incurring these heavy losses. That means the income which you have earned. ठीक है, आप वो क्या कह रहे हो कि हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है और इन्वेस्ट करने के बाद यू आर incurring the heavy losses. But the launderer shows large transaction in these shell companies.
शेल कंपनीज बैलेंस शीट में वो क्या क्या बता रहा है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस बता रहा है. ही टेक्स लोन इन द नेम ऑफ दिस कंपनीज. देखिए हाउ ही इज अर्निंग द मनी by using the name of this company. He takes the loan in the name of this company. That means he is taking the loan from the bank. Gets tax exemption from the government. टैक्स एग्जम्पशन भी मिल जाता है. न्यूली एस्टैब्लिश कंपनी है और कुछ कुछ कंपनीज ऐसी है जिनके ऊपर टैक्स एग्जम्पशन मिल जाता है. डज नॉट फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स as the company is not getting any income, there is no need for filing the income tax returns, and through all these fake activities he accumulates a lot of black money. What he is doing by attempting all these acts, he is earning a lot of black money. सी मेरी कोई कंपनी है नहीं, लेकिन मैं बैंक के पास गई, बैंक से मेरी बिल्ली भगत है और मैंने कहा कि मेरी ये कंपनी है, मुझे लोन चाहिए. बैंक ने मुझे लोन दे दिया है. नीरव मोदी देखा है, माल्या देखा है, आपके पास बहुत सारे केसेस है ऐसे, ठीक है. बाद में वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के वजह से फंसे भी हुए हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो ऐसा हुआ है. और ना जाने कितने लोग हो गए कि जिन्होंने फेक कंपनी के लिए अपना लोन लिया हुआ है. लोन लिया है तो उनके पास पैसे तो आ गए हैं, लेकिन उन्होंने ट्रांजैक्शंस ऐसे शो किए हैं कि जिसके वजह से लॉस दिख रहा है और देयर इज़ नो नीड टू रिटर्न दिस मनी टू द बैंक. यानी लोन रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं. एंड those people are using this money for their own purposes, and this way they are earning a black money. If investigating agencies or regulatory bodies want to check financial records, false documents are shown to confuse them. देखिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी आती है तो उनको फॉल्स रिकॉर्ड्स बता दिए जाते हैं और उनको मिसगाइड किया जाता है. इसीलिए फिर क्या आया है, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. And the aim and the objectives of this act are to prevent and control money laundering, to confiscate and seize the property obtained from laundered money. confiscate यानी क्या होता है, उनसे ले लेना, उन्होंने जो प्रॉपर्टी ऑब्टेन की है ऐसे से उसको ले लेना. टू डील विद एनी अदर इशू कनेक्टेड विद मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया. तो ये पर्पज़ के वजह से टू चेक, टू हैव अ चेक ऑन दिस ब्लैक मनी or money laundering, this act is introduced. This act has put concealment of funds, acquisition of possession, use of proceeds of crime and possession of money in criminal list. ये बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि देश विद्रोही एक्टिविटीज़ में, देश के विरुद्ध एक्टिविटीज़ में भी ऐसे पैसों का ज़्यादातर उपयोग किया जा रहा है. This is all about your money laundering act. If you have any doubt regarding this money laundering act, then you can ask me through chat or by asking your doubts on your official group. Okay, thank you.